Timothy. beautiful, very obedient dog puppy, and dog and cat both lives together in this environment. Typically, Sanatan Ashrama kind of a concept. So, Chandrasekhar ji, welcome. And आप बताइए ज़ीरो जो आप बता रहे हैं बिल्डिंग का समथिंग लग रहा है क्या है वो कॉन्सेप्ट पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए एंड देन So, Saraji, first of all, thank you so much. All the way coming from in the morning, so driving through the city, and much appreciated. And your vision and uplifting the rural, the spirit and the economy and ecological sustainable living. I think that's very interesting. I think that's what you started the goal to try to bring this up. I think that's very interesting. So as we start with that one again, so idea coming back to India is that one, so that back to Bharat and what we can do and our knowledge we learn about. I travel across the world, all the continents, and nearly about 50 plus countries, and living in across the America and Europe and Africa and South Asia and Middle East and Eurasia. So that gives a really very good interesting. Wherever I go, that the, the, the way people living and the way they grow and how they cultivate, how they're living, that's where they focus. And also always go and spend the time in the rural areas, right? So that's what the exposure. So when coming back to India, that when I'm looking to the like I see why people are wanted to come to the cities, right? So they're living in the villages. So whenever I travel from the airport to the go to taxi, then asking the first question asking the driver is that so where coming from village? आपके पास कितना land है? So always telling that अरे मेरे पास सर 10 एकड़ है 15 एकड़ है अरे इतना 15 एकड़ छोड़ के मतलब वाई ड्राइविंग कर रहे हैं सर उसमें तो कुछ उगाते नहीं मतलब कोई प्रॉफिट नहीं होता मैं ड्राइविंग किया तो मुझे कम तो 50-60 हज़ार तो बच जाता है सो तो मोर देन हमारा फार्मिंग है मैं फार्मिंग तो ठेके में दे दिया नहीं तो लीज में दे दिया कहीं तो खाली पड़ा हुआ बट सो एटलीस्ट आई इकोनॉमी देन आई when I was living there in the back in America, I was going 237 vegetables. And इतना लोग आते थे. So yes, all my friends in Oklahoma and New Hampshire, Dallas, they coming. So every weekend they भर भर के जाते थे. इतना छोटा जगह में we can go so much. और एक एकड़ में मतलब started calculating carbon footprint and food footprint, water footprint. एक बंदा एक फैमिली एक हम दो हमारे दो पेरेंट्स यूजली ऑलवेज कंसिडर 6 लोगों के लिए हमको कितना चाहिए मैं देखा तो क्वार्टर एकड़ काफ़ी होता है अच्छा राइट इफ यू लिव इन द सस्टेनेबल लिविंग पे गए तो देन उसी देख के देन आई स्टार्टेड द फार्मिंग देन वी स्टार्टेड विद मल्टी लेयर फार्मिंग उसके बारे में बता देता हूँ मैं देन हाउ व्हाई कांट वी बिल्ड ए सच अ फार्मिंग सिस्टम एंड नेट जीरो राइट इंडिया एज द टारगेट ऑफ 2070 वहाँ तक तो कैन रुक नहीं पाएंगे क्योंकि जस्ट टू फार अवे टू डू दैट हाउ कैन वो नेट जीरो हम कितना जल्दी मतलब अचीव कर सकते हैं then I started that what is the require the roti kapda makan that is the three major things right so the what we have a land we grow the multi-functional agroforestry fruit based the farming I started in my village में 60/40 साइड में 50 तरह के पेड़ लगा दिए हर तरह के फल एनी गिवन सीजन में एटलीस्ट 2 fruits 2 vegetable और कुछ herbs होना चाहिए नाम बताइए फ्रूट्स सो वी हैव इन द गांव में जो है लगाए सो तो जो भी ड्राई एरिया में आता है सो लाइक वी हैव ए चिक्कू है देन अमरूद है देन वी हैव ए सीताफल है रामफल है देन जैक फ्रूट है जामुन है देन कोकोनट है सो दीज आर द मेजर देन सपोर्टर देन वी हैव ए बेरीज है स्टार फ्रूट्स है देन वी आल्सो इन दैट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ माइक्रोक्लाइमेट चेंज हो गया देन वो अरेकनेट भी डाल दिया so then had a little leafy डाल दिया then herb भी आ गया so सारे जो थे then the regular daily में हमको जो मिलता है वो बनाना पपाया तो हमेशा रहेगा बनाना पपाया अमरूद so given location any time of the year वो हमेशा रहेगा वो तो कॉमन रहेगा then we have seasonal vegetables so 2-3 तरह के मैंगो पिकल के लिए खाने के लिए अलग अलग सो एक 50 तरह के विद इन द 100 किलोमीटर में जो ग्रो करता है इफ अडॉप्ट इनटू द वेरी स्मॉल एरिया इन द लेयर में सो दैट इट ऑक्यूपाई द लाइक जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं सो दैट 6-7 लेयर पे रहता है ऑल आर लिविंग हेल्दी सेम मॉडल अडॉप्टेड सो दैट वी कैन ग्रो छोटा सा एक जगह में उतना ग्रो कर सकते हैं तो देन आई सेड then what is required food you made the food right what is the required food then I started like we also did experiment living with the frugivores food में कैसे जी सकते सुबह सुबह उठ गया अभी गांव में गया था I took the farmers to village just to show that what they did it right so सुबह गया then वो थोड़ा खेत में घूम के then roam around थोड़ा काम किया then वो एक पपाया खा लिया
और एक रामफल आधा आधा इतना बड़ा होता है रामफल, सो आधा खा ले तो पूरा ब्रेकफास्ट हो गया। देन थोड़ा काम किया, देन वी वेंट टू द डुबकी लगा दिया उसमें, खेत में एक पॉन्ड है, अपने नहा लिया, देन आराम से पेड़ के भी थोड़ा सा ध्यान करके देन वी गो टू अदर थिंग। द लंच पे एक कोकोनट काट लिया, काट के देन वी हैव थोड़ा सा उसका नारियल पानी पी लिया, देन नारियल का मलाई खा लिया, वो लंच पर हो गया। और 2-3 गाय है, उसका दूध आएगा तो शाम को थोड़ा हल्दी में दूध में हल्दी डाल के वो पी लेता, आपका डिनर भी हो गया। सो दैट दे पीपल फेल्ट दैट सर ये खाने से हमको इतना एनर्जी आ गया, हमको भूख भी नहीं लगा और इतना एक्टिव रहा। सो नो कुक, नो बॉयल, नो ऑयल, आपका टाइम काम ही बच गया कुकिंग करने का वो का। सो देन दैट इज़ व्हाट दे स्टार्टेड दैट वन। हमको एक 6 लोग रहने के लिए हमको एक्चुअली एक क्वार्टर एकड़ काफ़ी होता है। So for 6 people आप एक क्वार्टर एकड़ क्वार्टर एकड़ काफ़ी होता है। सो दैट वन सेट हो गया, एक फूड का एक मीट हो गया। ठीक है। देन वी कैन पुट द सोलर, गर्म गाँव में एक बनाया, उस पर सोलर लगा दी, राइट। सो योर एनर्जी हो गया, क्योंकि लॉट ऑफ द सोलर इज कमिंग फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज, उसका 20 to 60% ट्रांसमिशन लॉस होता है, जी, राइट। बट इवन एनर्जी प्रोड्यूस रूफ टॉप पे हो गया तो उसका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। देन पानी का, देन रूफ हार्वेस्टिंग में कर लिया, उस गाँव नीचे एक बड़ा सा एक वाटर स्टोरेज करके। देन वाटर स्टोरेज का हाँ बताइए। बता। सो अभी क्या है, सो लोग सोचते हैं मतलब फिल्टर आके आ गया सिटी में, बट एंटायर सिटी सप्लाई किस में आता है, वो प्लास्टिक में आता है, राइट। अभी हम चाय पी रहे तो कॉफ़ी पी रहे तो यार प्लास्टिक में नहीं पीना बोल के थोड़ा सा हम थोड़ा वो उसके बारे में सोचते हैं, बट एंटायर सप्लाई आता है हमारा पानी प्लास्टिक में आता है, फूड सप्लाई आता है पॉलिथीन में आता है ना। सो मैंने कहा सो दैट्स वन थिंग। देन ऑल द प्रोसेसिंग होता है पानी, राइट। अभी जो बारिश का पानी छत के ऊपर गिरता है ना, उसको नीचे थोड़ा सा हमारा सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमेटिक वाटर फिल्टर होता है, सो दे रिमूव द डेब्रिस जो निकलता है। सो बेसिकली छत के ऊपर क्या है, डस्ट पार्टिकल तो रहेगा, दैट्स बेसिकली मिनरल होता है, अदरवाइज नथिंग विल बी देयर। सो दैट वी कीप द रूफ में तो चूना लगा के पुट द लाइमस्टोन लगा के साफ करके रख लो। फर्स्ट वाटर थोड़ा सा लेट इट गो, ऑटोमेटिकली होता है फर्स्ट फ्यू मिनट्स। देन नेक्स्ट वाटर गो टू द ग्राउंड पे चला था, मतलब ग्राउंड में वो बड़ा वाटर टैंक बनाया हम नीचे छत। What is the capacity? कैपेसिटी नियरली अबाउट लाइक एक है 35,000 लीटर है, 35,000. and then under 75,000 liters So है। you using a syntax tank or you build No, a no, we concrete? build a proper पत्थर से Very good. बनाया, Okay. उसको देन सीमेंट लगा के उसके बाद यू पुट 2 to 3 कोटिंग ऑफ रॉक लाइमस्टोन ना, उसको बिकॉज ऑफ दैट इज क्या होता है ना, सो दैट वो सीमेंट में जो भी कंटेनर्स वो नहीं आएगा। देन वी पुट द वन कॉपर लाइनिंग। Copper lining for what? सो 1 इंच कॉपर लाइनिंग लगा दिया तो ना क्या था, कॉपर इज बिकम द पानी को द स्ट्रक्चर बना लेता है, क्योंकि दिस वाई घर में क्या करते हैं हम कॉपर बॉल में पानी रात को रखते हैं सुबह पीते हैं ना, सो कॉपर रिलीज होता है उसमें। देन सेकेंडली द थर्ड थिंग हमको क्या करना है, वो बिल्कुल एयर और लाइट नहीं होना नहीं चाहिए, सो द वेरी एकदम एयर टाइट बनाना चाहिए। सो ऐसा कर लिया तो 10,000 ईयर्स तक, मतलब 10 ईयर्स तक, 10 साल तक वो पानी कुछ नहीं होगा। कितना लंबा रखेगा उतना मिल्क 10 सालों तक that water will पानी not be ड्रिंकेबल damaged. रहता। Yes. सेकेंडली हम क्या करते हैं, महीने में एक बार थोड़ा सा वो पच कर्पूर होता है ना, कैंपर, Yes, तो camphor, original कर्पूर, camphor, yeah, तो थोड़ा सा कैंपर उसमें लगा तोड़ दीजिए, But just like that you can throw. just throw it to that one, so that will keep the water very medicated water, and water इतना, क्योंकि उसमें कोई कंटेमिनेंट्स नहीं, Correct. पानी No sunlight. just enter into the storage रहता, और that water is you can entire family So के you लिए। don't have to then bring it to your RO system and No, not process required, it. not No? required, not required, not required. Because that is the most, RO में क्या होता है, so it remove all the minerals. RO पानी में मिनरल भी निकल जाता है। So the RO पानी पीने से क्या होता है ना, तो आपको बोन से when the water becomes so like a distilled, अच्छा. and it is sucks the mineral from the body. Ask all the people, they are experts in the orthopedics and all things. So RO पीने से then they take, because water is such a reverse osmosis जाता है, वो that remove every the mineral from the river, first water first start suck from the whatever available. So that's what the RO the pीते हैं ना, we are losing the mineral. But of course RO comes with additional मिनरल ऐड करते हैं ना, उसको मिनरल का फिल्टर होता है। Correct, yes. Then you can re-adding the mineral back, जो पानी So no point. You're removing the natural thing and adding an But artificial thing is that process. because pollution ज़्यादा But then रहता है, pollution, pollution रहता है ठीक और है। बैक्टीरिया रहता है, so that's what reason they wanted to filter it, और उसके साथ सारे निकल जाता है, जी। क्योंकि some of the mineral particles when the like a bacterial particle smaller than mineral particle, जी। so bacterial निकल रहा है तो mineral निकल जाता है, so basically उसमें then we have to taste बिल्ड करने के लिए चारकोल मिनरल का वो कैंडल लगाते हैं, सो दैट क्या मिनरल आ जाता है।
बट वो बारिश का नेचुरल पानी एटमॉस्फेयर से निकल के छत के ऊपर जाके नीचे जाएगा तो मतलब सो द कैपेसिटी जो आपने बताया वो कितने रेंज में फिल हो जाएगा? वन डे? See, the one thing is that like depend upon how much the How much is floor you have, right? correct. So we have put the 1480 something square feet of the harvestable roof. 1480 Yeah. स्क्वायर So we also put it like a the roof पूरा कलेक्ट होके है कि वो एक जगह में आ जाता है. दो टैंक है. So just in case sometimes contamination होता है ठीक है. में आ जाता है. So first we'll leave that one. वो यूज करने के लिए कपड़ा धोने के लिए हो जाता है. So if in my area, where Bijapur, what we call is a dry area, so the 500 millimeter annual rainfall होता है, right? 500 millimeter वो इतने एरिया पे it is enough to the store the tanks. That's the 6 लोगों के लिए पूरा एक साल के लिए हो जाता है. कपड़ा धोने के लिए उसके लिए ऊपर सोलर पे लगा, so that we have आपका फूड भी वही हो गया, Yeah. एनर्जी वाटर भी होंगे तो Good energy, Yeah. water. So this is if you address these at least energy or and water. If you city में if you want a smart city बनना है तो जो पानी गिरता है, look at बेंगलुरु में nearly about 1800 पानी मिलीमीटर गिरता है. इतना गर्म है पानी, we not required to bring any water. अभी क्या है कावेरी से 200-300 किलोमीटर से पानी आ गया नहीं उसमें लिफ्ट करना पड़ता. एलिवेशन फ्रॉम द कावेरी जो भी इतना 2-3 किलोमीटर दूर से आता है एंड बेंगलुरु में हाई एलिवेशन पे उतना एनर्जी लॉस होता है. उसमें हो गया. उसमें सेकंड में क्या होता है देन वो प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है. नन ऑफ द रिवर वाटर इज द प्योर नाउ. यू कैन नॉट ड्रिंक द कोई स्ट्रीम का पानी कोई रिवर का पानी नहीं पी सकते नहीं क्योंकि इतना यूट्रिफिकेशन होता है, पोल्यूशन होता है. वी लॉस्ट द ट्रेडिशन ऑफ द गाँव में हम तो स्ट्रीम पे हम जाके उसमें नहाते थे, उसका पानी पीते थे. वी लॉस्ट एंटायर फ्रीडम. नन ऑफ द सिंगल स्ट्रीम we have the pure enough to drink. सही बोल रहे हैं. No? So in order to bring that, I will बताऊँ how we can bring that one. So first we will addressing the what is called a net zero living. Net zero, ठीक Net है. zero living छोटा सा जगह में आपका जो फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, नट्स, स्पाइसेस, कंडीमेंट जो भी चाहिए जो टाइम हो जाएगा. ठीक है. देन 1/4 एकड़ में और ½ एकड़ में वो फ्रूट ट्री लगाएंगे. ठीक है. देन नीचे ग्राउंड कवर में फोरेज ग्रासेस, फोरेज पाउडर ग्रास लगा दिया तो आपको 1-2 गाय रख सकते हैं. अच्छा. राइट. अभी क्या है आपको आप बताएंगे सर आई डोंट नो अबाउट गाय का रखने के लिए लेबर नहीं है उसको खिलाने के लिए, उसको साफ करने के लिए और वो गोबर निकालने के लिए कोई नहीं. आई कम आउट टू द काउ सेंचुरी मॉडल अच्छा. है ना. उसका भी एक अलग है बट आई बता देता उसमें क्या है ना सिंपल. अभी आपने पेड़ लगा दिया. ठीक है. पेड़ के नीचे काफ़ी सो घास लगा दिया. सो दैट तो अभी 1-2 गाय छोड़ देते वहाँ पे. तो गाय इज वेरी इंटरेस्टिंग स्पेशली द इंडियन देसी काउ है. दे कैनॉट पूरे चरा के नहीं जाएगा बेड पे जैसा. अच्छा. थोड़ा सा यहाँ खाएगा, थोड़ा सा वहाँ खाएगा. देन गोबर इधर लगाएंगे, देन डू द यूरिनेट समवेयर एल्स सो दैट दे आर go fertilizer कर रहे हैं. so they first of all recycling the other tree leaves and the घास पत्ते खाएंगे. Okay. है ना. देन वी फॉडर स्पीसीज रहेगा समर में वो भी काट के डाल वो भी खा लेगा. सो द बैलेंस तो घूम चराते फ्री ग्रेजिंग बोलते हैं. सो फ्री ग्रेजिंग में जाके देन दे ईट देमसेल्फ. देन पेड़ के नीचे सोएंगे. देन एक हमने एक छोटा सा द वाटर ऑटो डिस्पेंसर होता है जो उसमें थोड़ा सा लगा है तो बॉल रहता है. ठीक है. तो गाय पानी पिए तो पानी कम होता है देन अपना भर जाता है. सो दैट आपका पानी 3-4 दिन में एटलीस्ट 5-6 बार उनको पानी पिलाना पड़ता है. देन एटलीस्ट 3 बार तो पिलाना पड़ता है. देन एटलीस्ट 2 बार उसको साफ करना पड़ता है पूरा उसका वेट है. सो दैट नाउ वी आर लिविंग दैट फ्री. आपको सारे 3 काम खत्म हो गया. उसका साफ करने के काम खत्म हो गया, खिलाने के काम खत्म हो गया, पानी पिलाने के काम खत्म हो गया. सो दे लिविंग सच अ फ्री लाइक ए काउ सेंचुरी में जंगल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो एनिमल रहते हैं. और वो जो फॉडर आप बताए उतने कम एरिया में 2 काउस के फीड के इनफ है कि 1 एकड़ में 2 काउ दे कैन मस्त रहता है एकदम. सो दैट 1 एकड़ में 500 फ्रूट ट्रीज रहेंगे. अलग अलग तरह का आई पुट ऑल द मिक्स फ्रूट लाइक पूरा जंगल से बना दिया. देन उसमें काफ़ी मल्टीपर्पज़ रहता है क्योंकि समर में घास नीचे नहीं होता. देन कैन जस्ट 2-3 ब्रांचेस काट लो, छोड़ दो वहाँ पे, वो पूरा खाएंगे. देन वो गोबर बन जाएगा. टेक एनी टेक्नोलॉजीज ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट इतना प्रॉब्लम हो रहे हैं. जस्ट द
एटलीस्ट 6 महीने लगता है कंपोस्ट बनने में। कोई क्रॉप रेस्क्यू है, पराली हो, लीफ हो, उसका कंपोस्ट बनाने में 6 महीने लगता है। वही गाय को खिला लिए तो, बैल को खिला तो, मतलब कैटल खा लिए तो 24 घंटा में बायो फर्टिलाइजर बनता है, 24 घंटा में। Right? That's how our the system, ancient system, my गाँव में like when my grandfather used to have a lot of the cows in the खेत में, cows and the livestock based farming रहता था, so बुल रहते थे। मैंने कहा ताता why you so many things? वो बोलते थे these are the fertilizer factories है। Yeah. So because of the entire crop rescue, they manage that one, they गोबर बन जाता था, खेत में डालते, एक बार ऐसा फर्टिलाइजर डालते तो 10 साल लगाने की जरूरत नहीं पड़ता था। So this is the system, so that ऐसा सिस्टम बना लिया तो 1 एकड़ में एक फैमिली दे लिव लाइक ए रिसोर्ट, दे हैव मे बी और लाइक वहाँ पानी के लिए टैंक रहता है, नहीं तो कुआं रहता है, तो उसके ऊपर एक कुटीर जैसा बना लो, राइट। आई एम लिविंग इन द विलेज डजंट मीन दैट लिविंग इन द डर्टी हट्स, नो, वी कैन बिल्ड सच अ ब्यूटीफुल हट्स, वी कैन ग्रो योर ओन ट्रीज देयर, लाइक सागवान हमने करके उसी से you could grow your own tree, build a very beautiful huts and thatch बना के, so many like जैसे ऋषि रहते थे, ऐसे एक पक्का नाइस घर बना लिया और गोबर लगा के उसको पूरा स्मेयर किया तो मत एकदम इतना बढ़िया बनता है। हाँ, देन आपका सुबह उठ गया, फल खा लिया, खाने चक्कर नहीं, सो लाइक अब खाने का हो गया, पानी में हार्वेस्टिंग द वाटर, पानी का हो गया, हार्वेस्टिंग सोलर वो भी हो गया, और क्या चाहिए गाँव में रहने के लिए। यू आर लिविंग लाइक अभी sir, I am the like a Club Mahindra member who used to go there. So we pay so much money to the membership and वहाँ जाके we are living the same set of the natural living in the farm of farm makers. It's called farm as a resort मेरा मॉडल है। So that आपको कैसे 1 एकड़ में आपका 10 एकड़ है तो 1 एकड़ को turn into this one. अभी वो बिहार में so that like नीरज KT नीरज, so that when he started that one long ago. So देखो 1 एकड़ में 1 लाख का फायदा भी होता है, एंड वह दूध का वो जो भी रेसिड्यू आता है वो गाय को भी खिलाते थे, वो भी हो जाता है। तो so आपका like जो that मॉडल है, जो आपने जीरो वो बताया उसको आप समअप कीजिए कि उसमें 4-5 चीज़ आपने जो बताया, कॉस्ट बताया, 6 फैमिलीज के बारे में बताया, एंड यू नो हाउ इजी इट इज़ टू इम्प्लीमेंट, कितना टाइम लगेगा टू नो टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि अभी लोग यूजली तो पेड़ के मतलब मरा देते, कृषि जंगली खेती करना है तो टाइम लगेगा बोलते हैं। Correct. हम क्या करते हैं उसका थोड़ा फास्ट ग्रोइंग, अभी मोरिंगा है, देन सस्पेनी ग्रैंडिफ्लोर, दीज आर एडिबल है, पत्ते भी खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं, पौड़ भी खा सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली वो 6 महीने में खड़ा हो जाएगा, तो 18 फीट बन जाएगा। सो द दोज आर फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है, उनको अडाप्ट करेंगे बीच बीच में, देन उसमें आप जो रेगुलर क्रॉप ग्रो करते हैं वो भी चलता रहेगा, सो दैट वी आर नॉट अफेक्टिंग द वट एवर ग्रोइंग देयर। सो अनाज दान और अनाज जो भी ग्रो करते हैं वो भी रहेगा, उसके साथ ये फल भी रहेगा। देन अभी 1 साल में थोड़ा अमरूद की तरह आ जाता है, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एक जो भी पेड़ आएगी अच्छे से प्रोडक्शन 1-2 साल लगता है, बट देयर इज सम अदर स्पीसीज यू कैन ग्रो, कैन प्रोड्यूस लाइक ड्रमस्टिक है, एक साल में शुरू होता है आपका जो शुरू हो जाएगा उसमें, ऐसे काफ़ी स्पीसीज है, सो दैट दे कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इमीडिएटली, 1 साल में आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देन दे ऐड लॉट ऑफ द बायोमास ऐड करेंगे, उसके साथ अलग अलग फ्रूट ट्रीज लगाएंगे ना, दीज आर फास्ट ग्रोइंग नरिशिंग ट्रीज है ना, उसको प्रोटेक्ट करेंगे बाकी ट्रीज को। देन जो भी रेस्क्यू आप वहाँ छोड़ेंगे और एवरी 3 मंथ्स उसके काट के छोड़ेंगे, वो पूरा कवर हो जाएगा, मल्च हो जाएगा, सो तो 1-2 साल में आपका मिट्टी एकदम फर्टाइल हो जाएगा, कार्बन सिक्वेशन ज़्यादा हो जाएगा, देन बाल एक्टिव बढ़ेगा, सो दैट वी आर नॉट टिलिंग द सॉइल, राइट। जो भी और the pre-monsoon dry sowing, that's what you can see that also in the popular Andhra में तो AP से में कर रहे हैं, so that's simply old Indians तो technology। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट में रहेगा कि अगर कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम या ऐसा जो अगर किसी लोग इंटरेस्टेड हो, वुमेन हो मैन हो हमारे विलेज में अगर इंटरेस्टेड हो तो वो आपसे कैसे रीच आउट करेंगे, ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है? So that is the reasons we started, it's called a global green growth. The idea of the global green growth is that anything we do, so we reduce the impact environment, whether we are wearing a cloth or eating the food, and then मकान बना रहे हैं, then we are the steel manufacture कर रहे हैं, every level हम कितना कम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज टारगेटिंग अबाउट 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट उसके साथ पोल्यूशन भी बढ़ेगा, इम्पैक्ट बढ़ेगा, बट हाउ कैन यू गो दैट विदाउट इम्पैक्टिंग दैट ग्रीन ग्रोथ, सो दैट यू आर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट बट स्टिल मेक इट, दैट्स कॉल्ड
viable, economically viable, economic sustainable model है उसके ऊपर हम we are doing that one. So इसी में so like a lot of requests coming that one. So I used to go to a lot of farmers. We started Nandi Krushi, livestock based farming. That like you heard about the Save Soil Sadhguru Suru kiye the, but how save soil, right? Then I look back. If you bring back the livestock back to the farming, we have more livestock in the factories, not in the farm. So that those the bullock based farming, if you come it back, they are just as recycling agents of the residues. Yeah. One thing. Yeah. When the if you have the guy or bullocks in the farm, लोग पेड़ लगाएंगे क्योंकि उनको संबर में पॉडर्टी चाहिए, उनका शेड चाहिए, चाय चाहिए, सो इसके लिए पेड़ लगाएंगे. सो द bringing the lifestyle back to farming, you're introducing the trees back to the farming. So when the only two things they can increase soil fertility is the animal का manure और पेड़ का पत्ती. Correct. दोनों आगे तो soil improve हो जाएगा. That's what I call 5 approach. I call 5 highs. जी. High biodiversity, that means high crop diversity, high tree diversity, high life diversity. High biodiversity in the landscape leads to क्या होता है? High carbon sequestration. Then so the मिट्टी अच्छे हो जाएगा, fertile हो जाएगा, healthy हो जाएगा. ज़्यादा बारिश से ज़्यादा कार्बन सिक्वेशन हो जाएगा. दोनों ज़्यादा कार्बन सिक्वेशन सॉइल में रहे तो आपको ज़्यादा पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ग्रीन वाटर जो भी बारिश का पानी गिरता है, सो दैट धरती में मतलब यू कैन होल्डिंग द सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है. देन स्टार्ट पर्कुलेटिंग इनटू द बेस फ्लो. जो सरफेस में जाता था पानी वो दैट बिकम सब सरफेस फ्लो, देन रिवर स्टार्ट रीफ्लोइंग, रिज्यूमिस बन जाएगा. तो तीनों हो गए तो आपको प्रोडक्टिविटी बिकम नेचुरल. वो नेचुरल बढ़ गया तो प्रोडक्टिविटी खास कल्टिवेशन कम हो गया है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया, वह सोशल डिफ्यूजन बन जाएगा. सो दैट्स व्हाट अप्रोच टॉकिंग अबाउट. तो व्यूअर्स आप सुन रहे थे, स्पेशली द पूर्वांचल स्टेट है, द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, लाइक ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश. वहाँ के अगर पॉलिटिशियन एंड पॉलिसी मेकर्स अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आपका जो स्टेट है वो एग्रो बेस्ड स्टेट होना चाहिए. वी शुड नॉट बी कम्पीटिंग विद द इंडस्ट्रियलाइज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. आपका जो स्ट्रेंथ है योर सॉइल है, आपके पास नेचुरल रिवर्स है, आपके पास चंद्रशेखर जी के पास जो मॉडल है, पॉलिसी मेकर्स फॉर यू, इट कुड बिकम सेल्फ सस्टेनेबल. आपको बड़ा इन्वेस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा गांव खुशहाल हो सकता है. द होल माइग्रेशन ऑफ द विलेज से रूरल से अर्बन, दैट कुड बी स्टॉप्ड एंड एवरी विलेज विल बी अ रिसॉर्ट जहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, हेल्थ इश्यूज अच्छा रहेगा, और जो मवेशी है, जो एनिमल हस्बेंड्री है, उनको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं. We'll talk more on that कि dairy doesn't mean only milk, dairy means the anything other than milk. So it's so much revenue and happy village will be happy India. And don't try to copy any western model and urbanization in a wrong way, right? लोग बोलते हैं कि poor place को urbanize कीजिए for revenue generation. I at this channel do not buy that idea. We are open for any other views. Urbanization does not help. It brings a lot of other challenges. Urban poverty is more dangerous than say a rural poverty. Rural में at least people can eat. Urban में तो it's so bad, and pollution, so many diseases. और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है. आपको पता है कि एक सर्वर कितना कार्बन एमिशन करेगा, कितना ग्लोबल वार्मिंग करेगा? Unbelievable. The world has not even imagined, right? So humans, it is up to you to choose आप कैसा जीना चाहते हैं and क्या legacy छोड़ना चाहते हैं. So with that, it was such an entertaining discussion with Dr. Chandrasekhar ji. I am sitting in his Bangalore home. देखिए कितना green है. See the greenery here, like आप यहाँ पे आएंगे तो आपको you will suddenly feel positive with the vibe, and I can feel that, right? So with that, every village can be like this. every village can be like this, right? So thank you sir so much, and we'll be talking more. So thank you. बहुत बढ़िया रहा ये, अच्छा रहा. ये आपने पूरा वो जीरो सुभाष पालेकर जी भी अपना जीरो फार्मिंग बोलते रहते हैं, उनका तो एक बड़ा सा गैंग ही है. बट सो जीरो फार्मिंग में आपने कवर कर दिया. अभी एक और नेक्स्ट So what I should say that one like going with a prakritic way of living, right? So then like the Sanatana Dharma है जो भी बोलते हैं हम, so that is a way of living. Hinduism it's a
True. Yeah, I won't say it as a religion. So we have लोग living. उसको समझाया नहीं है ना। सी तो प्रॉब्लम क्या है ना कि सनातन धर्म को समझाने वाला जो जो गुरुज हैं, जो दे बिकम कास्ट गुरुज, वो आई एम अ ब्राह्मण सो आई कैन ओनली डू दिस, वो उसका रिपल्सन दो तरह से हुआ। पीपल गेट एंड देन सडनली द पॉलिटिशियंस जम्प्स इन एंड देन स्टार्ट। So I understand that part. You have to be very careful in. You should not say कि anyway. Well, that's a very different But discussion. very, very interesting. That one I see that one like one why you're worshipping everything, right? True. Like a pear, guy, so much worship. Everyone is playing important role into this Every- level. Like why Rishi is like how they're living. Like when you're looking at my Indians में इतना बड़ा बड़ा टेम्पल बनाया है अराउंड 500,000 साल से पहले, पर अभी तो 3,000 लोग हैं। 500 साल से पहले का तो कितना होंगे? 50 लोग होंगे। Yeah. Why would you? 50 लाख लोग कैसे इतना बड़ा टेम्पल कैसे बना सकते हैं, वो देखा मैं। देन ऐसा नहीं है मतलब बाकी गांव के लोग आके हर गांव में Correct. एवरी विलेज ऐसा सच Yeah. मैसिव टेम्पल्स है, How? वो भी स्टोन से पत्थर से बनाए, वो देखा हूँ मैं। देन इतना बड़ा बड़ा कुएं बनाया, कल्याणी बनाया, वो भी इतना मतलब पत्थर से Strength ज़्यादा था बनाया। क्या? देन मैंने कहा हाउ दे डू, देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द वे वी आर डूइंग एग्रीकल्चर नाउ, दैट इट पुटिंग टू मच एफर्ट। उसको फ्लोइंग में करना पड़ता है, वीडिसाइड लगाना पड़ता है, पानी लगाना Because पड़ता soil को है, सो मार दे दिया सो ना। मच कर दे, बट व्हाट दे आर लिविंग दैट ऋषि लाइफ में all together, paid crops and livestock going together. There's ऋषि सुबह गया, everything maintained, जो जंगल जैसे बन गया है ना। So what is required? You are just go in the morning, that घूम किया, थोड़ा सा एक फल खा लिया, नाश्ता हो गया, थोड़ा दूध पी लिया, लंच हो गया, बस खत्म। कोई काम नहीं होता था ना। Unnecessarily what they doing the present agriculture, we are multi-layer करते थे, productivity much higher than this one. I did a few experiments on the cotton में क्या क्या उगा सकते हैं, 8 times more profit doing nothing. So we have such a models है अभी, because became in the clutch of the American model हम अडॉप्ट कर लिया यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रीन रूल्स ने कि हम सारे पेड़ हटा दिया, so that even before independence में last at least 75 years में last about nearly 70% of the green cover in the agriculture areas. That's why India they are asking about the 33% green cover in the farming system, and I have very good experiments. मैं दिखा देता हूँ also the experiments. So जैसे पेड़ परसेंटेज गांव मतलब खेत में बढ़ते जाएगा, आपका पानी इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा होता जाएगा। इनफिल्ट्रेशन होता है मतलब वी आर नॉट लूजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। द रीजन वाई जो भी बारिश आता है, लुक इनटू ऑल द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड मड्डी, दैट शो दैट समथिंग इज रॉन्ग। इवन जंगल्स का पानी आता है तो मड्डी आता है, मतलब दैट इज नॉट द राइट। व्हाट आई डिड दैट वन, जो कितना भी पानी गिरता है और फर्स्ट 3 रेन्स मैं फार्म से बाहर नहीं जाएगा, just suck into the ground. तो ट्रेंच रहता है खेत के बाजू, ट्रेंच I saw that one, and उसमें पानी they started oozing out as spring after 3 rains. That means the clean water start flowing, means you are not losing the soil fertility, पानी बच जाता है, and throughout the year you can growing that one. So that is what we need to do. Multifunctional farming system, agroecology, वो लेके आए तो we can export the food to the rest of the world. जो हमारे पास हमारा ग्रीन कवर बन जाएगा। और सी सिंपल एग्जांपल, आई वाज टॉकिंग विद द मिनिस्टर द अदर डे, सो चावल को वी आर एक्सपेंडिंग राइस एवरीवेयर, wheat everywhere, बोलते रहिए। हाँ। so rice everywhere, wheat everywhere, and now that is what we need to move away. I'll give a simple example analogy. 100 square foot area में like 10 by 10, how much the rice will grow as per FAO statistics? It's about 1 kilo, right? 1 kilo. Now the same area में 10 by 10 like this area में एक अमरूद पेड़ लगाओ और एक जाकुट लगाओ, 1 kg चावल होता है, क्योंकि चावल एक ही लेयर होता है। पेड़ लगा दिए तो अमरूद 10 तरह लेयर होता है, 35 to 50 किलो अमरूद आता है। दैट्स 1 thing. चावल 1 कप चावल में खा ले तो आपको कैलोरीज मिलता है 300 to 400 डिपेंड अपॉन हाउ यू ईटिंग, राइट? उतना चावल के लिए 2000 to 4000 लीटर चाहिए, एक चावल एक किलो का चावल I have read it, yes. सो देन वो उतना नहीं है, और केमिकल डालना पड़ता है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, और उसका एनर्जी आता है, पॉसिबल बर्न होता है, देन उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, कुकिंग करना पड़ता है। लुक एट द अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्टिंग थ्रू द एंटायर साइकिल ऑफ द राइस प्रोडक्शन, राइट? उसी जस्ट यू कैन प्लक द अमरूद, खा लिया, सेम अमरूद 200 ग्राम एक कप रहता है, 400 कैलोरी कॉम्प्लेक्स। But will that meet to the question then it would be
कि आप फल प्लांट बेस्ड सब कुछ खा रहे हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ लाइक सॉल्ट का जरूरत बॉडी में है, मिनरल्स का बॉडी में जरूरत है, आयरन का जरूरत है, राइट? वो सारा कुछ, ये इतना आप हाई ग्लूकोज में रहेंगे तो डायबिटीज का प्रॉब्लम, not at यू all. कटिंग राइस बट यू ईटिंग लॉट ऑफ शुगर इन अ डिफरेंट गुड फॉर्m, but still you But volume no, this is that's what the people understood that thing, right? If the pure carbs become a starch become a sugar. But when you eat the अमरूद, for example, आप साइंटिफिकली देख लो, अभी इफ यू हैव द शुगर है तो यू कैन चेक द शुगर लेवल, एंड वो रा अमरूद रहता है ना, थोड़ा सा पूरा पका नहीं रहता है, मतलब पूरा रा भी नहीं रहता, उसको एक दो अमरूद खाओ खाली पेट से, देन यू कैन चेक द शुगर लेवल नीचे जाता है. really Yeah, that's what you not understood. Fruits is fruits, right? Because of we not eat anything along with that. अभी क्या कहते हैं, आपको जूस बना के खा लेंगे, सलाद बना के खा लेंगे, उसको शुगर डालेंगे, वो नहीं, just then secondly, the quicker we eat after the harvest, the better. The moment you wait, for example, spinach, scientifically proven, Caliph University did a very interesting work on that. In 24 hours, spinach lose 90% of the nutrition. 24 hours After after plucking or after plucking, हाँ, so we have to eat within 24 hours. Corn the cob. लोग फ्रिज में रखते हैं इतना देर, पहले वो हार्वेस्ट करके लेके आएंगे, फिर सुपरमार्केट रहेंगे, Supermarket. आप लेके आएंगे, फ्रिज में रखेंगे, 2 दिन लग जाए, आपके पास We are eating a dead shell. 95% of the vitamin C and A is gone by the 24 hours period. I didn't know that. That is the part what from the farm to the plate, the distance will take, one thing we lose a massive amount of nutrition. इस पे हम लोग बात करेंगे सेकंड, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है. So this is very important. That's why the raw, because we have removed that all the fall vegetable, अभी डाल दिया, अभी स्प्रिंग में आ जाएगा, ओके, right? So kids सुबह आ गया, थोड़ा सा lettuce तोड़ दिया, ब्रेड में रख दिया, खा लिया. Even they eat 2 lettuce leaf, that is enough for their supplement. बहुत बड़ी बात है है. ना? बट व्हेन यू ईट द स्पिनच, इतना एक दिन के बाद उसको फ्राई करके, रोस्ट करके, रगड़ के खा ले, तो एट द एंड विद नॉट, दैट्स व्हाई वी ईटिंग द मोर फूड लाइक ए बेली फुल हंग्री सेल्फ. दैट्स द अंदर कांसेप्ट टॉकिंग अबाउट. वी ईट ए बेली फुल होता है, बेली फुल होता है. So that with the last 3 months I did an experiment on the brewing tolerance. Okay. I put the CGM, continuous glucose monitoring. It's very interesting. Within 3 months, I gained 10 kilo. Just because of I avoided a salad, sprouts, I shifted to rice and So wheat. the first topic. So I will, this pair. so 3 questions I will ask. Right? Give me opportunity to ask question. Yeah. First will be कि एक typical dryland area, आप जहाँ से हैं, कौन सा जगह? बीजापुर. बीजापुर. So बीजापुर में. विजयपुर है नाम इसका. So बीजापुर में वाटर का स्कैर्सिटी है ना, आपने उसको हाँ. लोग को बता